Hello everyone, welcome back to my channel. In this video lecture, we are going to study a very interesting essay of Francis Bacon, which is Of Expense. Uh, but before we start, do subscribe to my channel and like my videos. Bacon's essay Of Expense is a very interesting essay. The writing style of Bacon is so realistic. The forms of essay he used to wrote is related to our daily life. हमने बेकिन्स के एसेस पहले भी पढ़े हैं ऑफ स्टडीज़ के बारे में, ऑफ ट्रैवल के बारे में, एंड नाउ इट इज़ ऑफ एक्सपेंस. तो बेकिन्स की जो एसेस रहती थी वो काफ़ी रियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड रहती थी. नो फैंटेसीज एट ऑल, नथिंग द नेक्स्ट लेवल. इस जो डेली लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो जो सिनेरियोज होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई में तो उसका जो भी मेथड्स होता है, पढ़ाई के जो रूल्स होते हैं. एंड नाउ दिस इज़ ऑफ एक्सपेंस. तो ऑफ एक्सपेंस में भी बेकिन्स ने काफ़ी रूल्स बताए हैं. एक्सपेंस से आप समझ सकते हो कि खर्च करना. तो बेकिन्स का काफ़ी इसमें डिटेल्ड सर्च किया था उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ रूल सेट्स किए थे एक्सपेंस के लिए. Of Expense is an essay about our income to expenditure. In this essay, Bacon set some rules to advise us how and where we should spend our money and how we can save them. So, Of Expense is a essay by Bacon in which he tried to advise us, if you are having some huge amount of salary, if you are having some handsome salary, some good amount, then you must think about your expense. You must save some of your expense, some of your savings, some of your incomes. Of expense. In this essay, Bacon lays down some rules for spending money. Bacon also advises us to spend our expense in a certain way. So as you can see that in this essay of expense, Bacon sets some rules where and how you should spend your incomes, and also try to save some of the parts of your income. And if you are spending monies, be careful and wisely and spend in a certain way. Starting with, riches are for spending and spending for honor and good actions. Means जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनका जो एक्सपेंस करने का अपना एक तरीका होता है. वो जो एक्सपेंस करते हैं उसमें वो अपने पावर, अपने पोजीशंस, उनकी जो वेल्थ है, उनका जो ऑनर है, प्राउड है, उस चीज़ को शो करते हैं. जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो इन सारी चीज़ों को. अमीर लोग इतने एक्सपेंस इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने वेल्थ को, अपने ऑनर को लोगों को शो करना चाहते हैं. ओके, वी आर सो वेल्दी पर्सन्स, वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम, सो दे आर स्पेंडिंग. सो दिस इज द थॉट, riches are for spending and spending for honor and good actions. Therefore, extraordinary expense must be limited by the worth of the occasions. For voluntary undoing may be as well as for a man's country as for the kingdom of heaven. Bacon also suggested that we should spend our money so liberally, we should spend our money on extraordinary occasions and should be spent prudently on ordinary occasions. Which means Bacon का कहना ये है कि अगर आपके फैमिली में या कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होते हैं, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्च कर सकते हैं. बट कभी कभी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं, ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी को स्पेंड कर देते हैं. तो बेकिन्स का कहना ये है कि जो नॉर्मल ओकेजन्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत प्रूडेंटली, बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करने चाहिए. According to Bacon, our expense must be depend upon our occasions, which means कि आप चीज़ों को समझो कि किस occasion के लिए कितने amount of expense की ज़रूरत है. कभी कभी लोग unnecessary amount को भी use कर जाते हैं एक छोटे से festival में. He also said we must spend a fixed amount of money. We have to observe carefully in which we are spending. And he also suggests that
we should spend a fixed proportion of your income. Also, he says that we have to save half or two-third amount of our income. We always have to save some small portions of income. Bacon also advises us to choose our employee or servant very wisely, in which Bacon का कहना ये है कि जब भी आप सर्वेंट्स या किसी एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो तो बहुत ही केयरफुली उसको हायर करना चाहिए. सर्वेंट्स आर नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट and responsible for a greater expenditure in the family. Sometimes servants also major reason for the greater expenditure. He therefore advises that servants should be selected very carefully and should be changed as often as possible. And Beckins का कहना ये भी है कि servants को timely हमें change करता रहना चाहिए. A man had need if he be plentiful in diet to be saving in apparel, if he be plentiful in the hall to be saving in the stable. इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा अपने डाइट को लेके मीन्स अपने खाने पीने को लेके या फिर जो भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको लेके अगर बहुत खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एपरल्स पे मीन्स उनके आउटफिट्स पे उनको काफ़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी. और कोई लोग अगर अपने हॉल्स को लेके काफ़ी एक्सपेंस कर रहे हैं तो उनका जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे उनको काफ़ी सेविंग्स करनी पड़ेगी. Beckens also says, if you are spending money in one direction, try to save some money in another directions. So इसका जस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी पहले. लाइक बेकन का कहना ये है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको एक्सपेंस करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड एक्सपेंस योर थिंग्स वेरी वाइजली. लाइक अगर आप चीज़ों को हिसाब से रखें एंड चीज़ों को डिसाइड करके करें कि मुझे इस चीज़ में कितने अमाउंट्स को एक्सपेंस करना है एंड नेक्स्ट अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑन दी अनदर हैंड आपको किसी एक चीज़ में आपको सेविंग्स करनी ज़रूरी है. He says while spending money we should not be too proud or too negligent. If we do so we come in ruin. So Beckens का कहना ये है कि पैसे खर्च करते वक्त एक्सपेंस करते वक्त ना तो हमें ज़्यादा घमंड करना चाहिए और ना ज़्यादा नेग्लेक्ट करनी चाहिए चीज़ों को. अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा वी केम टू इन रूइन, मतलब लोग बर्बाद हो जाते हैं. वी विल बी इन पेन एंड ट्रबल. If we are fearful, it will also be not able to get what we want. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को कुछ चाहिए, कुछ खरीदना है, बट स्टिल वो फियर की वजह से अपने मनी को वहाँ एक्सपेंस नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ भी उनसे कभी छूट जाती है. सो बेकिंस का कहना यही है कि if you have money and if you are spending it, spend very carefully and wisely. Again, Beckens says, if you are clearing your debts, never forget to save small savings. So Beckens का कहना यह है कि अगर आपके ऊपर काफ़ी डेब्ट्स है, मीन्स कर्जा है, तो अगर आप अपने कर्जे को चुका रहे हैं तो कभी भी एक फुल अमाउंट में अपने कर्जे को नहीं चुकाइए. आप धीरे धीरे कर्जे को चुकाइए और उसके साथ साथ ही कुछ स्मॉल सेविंग्स भी करते जाइए. तो बेकन का ये कहना है, नेवर फॉरगेट टू सेव स्मॉल सेविंग्स, इट विल ऑलवेज हेल्प यू. बेकन्स ऑल्सो सेज टू बी अ स्पेंडथ्रिफ्ट इज टू ब्रिंग ruin upon us. We should always be within our limits in our expense. And Beckens also says we must control and check on our charges, which means Beckens का कहना ये है कि जब भी आप सेविंग्स कर रहे हो या एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, तो हमेशा अपने आप को एक कंट्रोल में रखना है, एक कॉन्स्टेंटली प्रोसेस से करना है और हमेशा अपने चार्जेस को, अपने एक्सपेंस को टाइमली चेक करते रहना है. Beckens also said term return not, which means do not recur, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे खर्च जो कभी वापस नहीं आते. In expenditure on wines, clothing and household expense, a man should restrict himself because these are constant and reoccurring charges. But on the marriage of an only child
and the coming of the age of his or her, he may be more profuse in expenditure because these are not occasions that will occur again. So बेकिंस का कहना ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो हमेशा आती हैं, जैसे रेगुलरली अगर आप शॉपिंग्स पे जा रहे हो, वाइन्स खरीद रहे हो या हाउस होल्ड एक्सपेंस है, ये तो हमेशा चलता रहेगा, तो इस पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है. लेकिन बेकिन ये भी कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा बड़ा ओकेजन है, लाइक अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी शादी होने जा रही है या फिर कुछ ऐसा बड़ा फंक्शंस है, एनिवर्सरीज है, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में एक ही बार होती है. तो बेकिन का कहना ये है कि इन सारी चीज़ों पे आप चाहो तो दिल खोल के खर्च कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना चाहिए. सो जनरली वाइज मैन फॉलो दिस. They do not spend much on daily necessities and the comforts of life, but on particular occasions they spend lavishly and profusely. So that's it for this video lecture. Thank you everyone.